Something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. हाउ आर यू नेगी सोल्जर? कैसे हैं आप लोग? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. हाउ आर यू नेगी सोल्जर? टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स. कैसे हैं आप लोग? माय फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग फुल कोर्स ऑन बेसिक थर्मोडायनामिक्स एंड टुडे वी आर हैविंग थर्ड लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टी एंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. आर यू रेडी? टाइप इन चैट बॉक्स. आप लोग रेडी हैं? अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. आर यू रेडी? Bolo re baba, type in chat box, type in chat box. Those who are coming first time to my class, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I am the top educator on Unacademy Plus, having rank 8. I'm mechanical head on Academy branch, get All India rank 1, 2019 contingent Kansas paper, All India rank 1, banknote paper mill. Masters from IIT Bombay, I was the topper of my batch. I'm teaching for GATE and AC since 8+8. I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. This is my profile on Unacademy platform, beta. As I told you, my name is Devendra Singh Negi. I'm an Unacademy verified rank 8th educator in GATE and ESC category, having more than 1 crore watch minutes, having more than 3,000 dedications in GATE and ESC category. In fact, I'm the only technical educator who is having more than 3,000 dedications. Yes, yes, yes. I'm good, I'm good, I'm good. आज जाओ रे बाबा, आज जाओ रे बाबा. लिंक को शेयर कर दीजिए. शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. बेटा की क्लास स्टार्ट हो गई है. लिंक को शेयर करते जाएंगे, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाएंगे, लार्ज बनाते जाएंगे. माय फ्रेंड्स, नाउ इफ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन Unacademy प्लेटफॉर्म, फॉलो कर लीजिए बिकॉज आई एम टेकिंग नंबर ऑफ फ्री क्लासेस ऑन Unacademy प्लेटफॉर्म. देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड Unacademy फ्री स्पेशल क्लासेस. उसमें मेरी फ्री क्लासेस चल रही है बेटा. आई हैव टेकन एंट्रोपी चैप्टर कंप्लीटली. आई हैव टेकन आइस इंजन साइकिल्स, गैस पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल. ये पूरे 4 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हुए. एक बार आप जाकर देखना, आपको मजा आ जाएगा. झमाझम क्लासेस है रे बाबा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, इन 4 चैप्टर से आपको 6 मार्क्स टू 8 मार्क्स गारंटीड मिलने वाले बेटा. इनको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता. यहां से आपको मिनिमम 6 मार्क्स मिलेंगे इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम. ओके, नाउ why should you follow me? Because I'm bringing number of free initiatives. बेटा दिसंबर महीने में मैंने 3 फ्री इनिशिएटिव लिए. मैं आपको बता दूं, आई एम डिस्कसिंग द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स. आई एम डिस्कसिंग XCB PYQ सीरीज. आई एम डिस्कसिंग XCE PYQ सीरीज. नाउ अगर आपने अभी तक लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, ये बेटा आज की क्लास है, ये आज की क्लास है. बता देता हूं आपको. Today we will be meeting at 10:15 PM and we'll be discussing the beautiful problems of the second law of thermodynamics. ठीक है, अगर आपने अभी तक Unacademy लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो Unacademy लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए बेटा. बिकॉज इफ यू आर इंस्टॉलिंग द Unacademy लर्निंग ऐप, यू विल बी गेटिंग 2 बेनिफिट. फर्स्ट बेनिफिट बेटा, यू विल बी अनलॉकिंग द फ्री प्लान्स ऑफ Unacademy. फ्री प्लान्स में क्या था बेटा? यू विल बी एबल टू वॉच Unacademy फ्री स्पेशल क्लासेस देख पाएंगे आप. दूसरी चीज, आप फ्री क्विजेस लिख पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट फ्री टेस्ट सीरीज आल्सो. उसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं. नाउ लिसन केयरफुली. द नेक्स्ट थिंग इज यू विल बी एबल टू मैसेज मी पर्सनली. यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा.
आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे। द मोमेंट यू आर इंस्टॉलिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी द स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो पूछ सकते हैं प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कहां से पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक ठीक है, टेस्ट सीरीज कब लिखनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, each and everything I'm going to tell you. In fact, if you are interested for Unacademy Plus and if you are having any kind of doubt, you can message me. अगर आप Unacademy Plus में interested हैं तो उससे related कोई भी doubt आप मुझे भेज सकते हैं। कब ज्वाइन करना ठीक रहेगा, कैसे ज्वाइन करना, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी गाइडिंग यू। और अगर आपने नेगी 10 रेफरल कोड लगाकर ज्वाइन कर लिया है, इफ यू हैव ज्वाइंड अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड नेगी 10, then you just message me, sir, I have joined Unacademy Plus using the referral code NEGI10. I will be adding you in all the ग्रुप्स विच आर देयर फॉर प्लस स्टूडेंट्स। तो प्लस स्टूडेंट्स के लिए जितने भी ग्रुप्स बने हैं उनमें सब में आपको ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपका एक भी डाउट अनसॉल्व्ड ना बचे, सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ओके, नाउ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन फ्री प्लान्स यू विल बी एबल टू अनलॉक, फ्री प्लान्स में आप क्या अनलॉक कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस, क्विजेस, टेस्ट सीरीज एंड along with that Unacademy Combat for GATE. Yes my friends, it is the India's biggest fortnightly competition for GATE exam where the challenging questions has been curated by the top educators और उसके detailed video solution भी आपको मिलने वाले हैं। इनफैक्ट इफ यू आर अंडर 100, आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में आती है, यू कैन वन डिफरेंट ब्यूटीफुल प्राइजेस आल्सो। जो है पहली रैंक पे जो रहेगा एप्पल मैकबुक मिलने वाला है, सेकंड रैंक पे जो रहेगा एप्पल आईपैड मिनी मिलने वाला है, थर्ड वाले को क्या मिलने वाला है, एप्पल एयरपोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स रिमेनिंग पीपल विल बी गेटिंग द अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स, राइट। नाउ अगर आपने अभी तक इस अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर गेट के लिए एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। दोज हु आर गोइंग टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फर्स्ट टाइम, if they are asking you the invite code to enroll, you know there is only one invite code for the Negi soldiers, that is what, NEGI10, NEGI10, NEGI10। yes yes yes, बुला लो रे बाबा, सबको बुला लो, compete करो रे बाबा नेगी सोल्जर्स। नेगी सोल्जर्स will be competing in this Unacademy Combat for GATE एग्जाम। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करेगा एंड लेट अस सी व्हाट इज द रैंक। ठीक है, रियल टाइम होने वाला है बेटा, आपको पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। तो हर नेगी सोल्जर्स नेगी 10 इनवाइट कोड लगाकर यहां पार्टिसिपेट करने वाला एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ द नेगी सोल्जर्स विल बी द विनर ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट। आपको लिंक यहां मिल जाएगा बेटा, दिस इज द लिंक, आप इस लिंक को एड्रेस बार में टाइप कीजिए, आप डायरेक्टली एनरोल वाले पेज पर चले जाएंगे। नाउ देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मी सर अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आपको फॉलो कैसे करना है, आपको मैसेज कैसे करना है, आपकी फ्री क्लासेस कैसे अनलॉक होंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं बेटा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। द मोमेंट यू आर installing the Unacademy learning app, they will be asking you the mobile number, you will be getting the OTP on that mobile number and then you have to go to the GATE and ESC category, then you have to select the language। आप लैंग्वेज देख लीजिए जो भी आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, then you have to click on this search button, you have to type my name देवेंद्र सिंह नेगी। जैसे आप देवेंद्र सिंह नेगी टाइप करेंगे my profile will come, click on my name, something like this will open। now here you click on this follow button, the moment you will be clicking on follow button it will convert into message button, मैसेज बटन बन जाएगा। अब यहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स यू कैन सेंड मी द मैसेज। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर दिस यू स्क्रॉल अपवर्ड, माय स्पेशल क्लासेस विल कम, एंटर एन इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान्स। नेगी सोल्जर्स का तो एक ही इनवाइट कोड है बाबा, नेगी 10। यहां पर क्लिक करेंगे अनलॉक, congratulations, you have unlocked your free plan which includes free special classes, quizzes, test series and of course Unacademy Combat for। enter the invite code to unlock your PPT। ये इनवाइट कोड क्या है रे बाबा, ये इस पीपीटी को अनलॉक करने का इनवाइट कोड क्या है रे बाबा, बोलो रे बाबा क्या हो सकता है इनवाइट कोड, व्हाट इज द इनवाइट कोड। गुड इवनिंग, यस। This is the course which will be very helpful for GATE 2022 and 23 aspirants, Engineering Services 2022
एंड 23 एस्पिरेंट्स। बेटा पूरा डिटेल में चलने वाला है, बिल्कुल झमाझम एंजॉय करके पढ़ने वाला है, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है। बेटा शॉर्टकट नहीं पढ़ाऊंगा, I will be teaching each and everything so that IC engine, power plant, R&AC, compressible flow, केक वॉक हो जाएंगे रे बाबा हम लोगों के लिए। यस, नेगिटन नेगिटन नेगिटन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस 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 यस। चलो नेगिटन डाल, ओहो, नाउ द पीपीटी इज ओपन, नाउ द पीपीटी इज ओपन, यस यस। नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, जल्दी से बोलेंगे बेटा, कल क्या डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ। व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे, कल क्या डिस्कस किया था? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे। वी डिस्कस द टाइप ऑफ सिस्टम्स। क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार से क्विक रिवीजन ले लेते बेटा। वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोज सिस्टम, ध्यान से देखेंगे। वी डिस्कस्ड अबाउट क्लोज सिस्टम, वी डिस्कस्ड अबाउट आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप करो रे बाबा, what we discussed yesterday. I want each and everyone to type in chat box. We discussed isolated system and we discussed open system. We discussed open system. Now closed system के बारे में कुछ याद आ रहा है बेटा? Are you able to recollect something for closed system? जल्दी से बोल दीजिए, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है क्लोज सिस्टम के लिए? टाइप करो रे बाबा चैट बॉक्स में, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आर यू एबल टू रिकलेक्ट एनीथिंग? फटाफट से बताइए, टेल मी क्विकली। ओहो, what a beauty! What a beauty! What a beauty! Excellent, excellent, excellent. क्या बात है। देखो, here I am writing system. Mass interaction. Energy interaction, energy interaction. So in case of closed system, what is the situation beta? We don't have any mass interaction, but we will be having the energy interaction. In case of isolated system, there is no mass interaction, there is no energy interaction. And in case of open system, you can have mass interaction, you can have एनर्जी इंटरेक्शन। आर यू एबल टू रिकलेक्ट? फटाफट से बोलेंगे, आर यू एबल टू रिकलेक्ट? यस 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 यस, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट। नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? मैंने बताया था कल आपको, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज व्हाट? फटाफट से बोलेंगे रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स, क्लोज सिस्टम इज आल्सो, अरे लाइक करो रे बाबा, क्लोज सिस्टम इज आल्सो नोन एज कंट्रोल मास, एंड whereas open system is also known as what? Control volume, control volume. Chal, now let us move forward. There is one interview question beta, there is one interview question. Number of time people are asking this question in interviews. What is control surface? बताइए बेटा, किसको पता है, किसको पता है? What is control surface बेटा? Hello बेटा राहुल, how are you? Yes yes yes. Any intelligent student of the class can tell me what is control surface? फटाफट से बोलेंगे बेटा, control surface क्या होता है? What is control surface? Control surface क्या होता है बेटा? Yes 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 yes. Control surface क्या होता है? फटाफट से बोलिए बेटा। देखो, we know that closed system can be written as
कंट्रोल मास, क्लोज सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कंट्रोल मास लिख सकते हैं. वी नो दैट open system can be written as what? Control volume. And remember, whenever we are using the term control mass or control volume, in such case boundary is known as control surface. I hope each and everyone is clear what I am saying. जब भी आप closed system को, whenever you will call closed system as control mass, you will call open system as control volume, then we will not use the word boundary, we will be calling as what? Control surface. यहां तक सब लोग clear हैं? I hope each and everyone is clear till here. Yes, excellent. So when the term, देखो बेटा ध्यान से, when the terms control mass and control volume are used, then system boundary is known as what? Control surface. I hope each and everyone is clear till here. Type in chat box if you are clear till here. Very good Chetan, very good बेटा. यहां तक सब लोग clear हैं? यहां तक सब लोग क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे बेटा. इफ यू आर क्लियर टिल हियर देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्मल पावर प्लांट. बेटा थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ध्यान से सुनना. यू विल बी हैविंग द कंडेंसर. फ्रॉम द कंडेंसर द water in saturated liquid state will be coming out. This saturated liquid will be entering the pump where you will be giving some power input, and this saturated liquid will be converted into subcooled liquid. Then this subcooled liquid will be entering the boiler and superheater. Here you will be supplying the heat, and now from the outlet of the superheater I will be getting the superheated vapor. This superheated vapor will be rotating the blades of the turbine. I will be getting the power output, and now at the outlet of the turbine I will be having the wet vapor which will be entering the condenser. Here I will be losing the latent heat, and this wet vapor will be converting into what? Saturated liquid. इतना तो सबको पता है, वही चीज लिख रहा हूं, लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. बेटा यहां पे मैं कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. यहां पर कुछ चीजें पूछूंगा आपसे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. लुक एट हियर. Here I am having saturated liquid state. Now this saturated liquid state is entering the pump where we are giving some power input. Now at the outlet we will be getting the subcooled liquid. ये क्या होती है सब स्टेट पूरे डिटेल में बताने वाला हूं बेटा, फिलहाल आप जान लो. We will be getting the subcooled liquid. Now what is going to happen beta? In boiler we will be supplying the heat. Let me write Q dot as that, Q dot S1 ऐसा मान लो. Then in superheater we will be supplying the heat, Q dot S2, and now the subcooled liquid will be converting into superheated vapor. ये जो subcooled liquid है ये superheated vapor में convert हो जाएगा. Now this superheated vapor will be entering the turbine. It will be rotating the turbine blades, and of course I will be getting the power output W dot O, and now at the outlet I will be having the wet vapor. Outlet of the turbine I will be having the wet vapor. Now in condenser I will be having the heat rejection. Latent heat will be getting rejected. Let me say at the rate of Q dot R, and then I will be getting the saturated liquid. Now why I have given you all these examples? मुझे एक चीज बताना बेटा. Pump, listen carefully. This pump, anyone in the class, this pump is behaving as an open system or closed system or isolated system. बोलिए बेटा ये जो पंप है ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है? क्विकली आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर मी दिस. आई वांट ईच एंड एवरीवन टू आंसर मी दिस. बोलिए ये जो पंप है ये पंप ओपन सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, क्लोज सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है या फिर आइसोलेटेड सिस्टम? अरे वेरी गुड है रे बाबा. टाइप इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स. Excellent, excellent, excellent. I want each and everyone to type in chat box and tell me
Yes, Mayur, you are absolutely correct. Gautam, Jayesh, very good, beta. Yes, it is behaving as an open system. Why? Because mass is crossing the boundary. Mass is crossing the boundary, and in fact energy is also crossing the boundary. If I ask you, this boiler is behaving as open system, yes, boiler is also behaving as an open system. Superheater is also behaving as an open system. This turbine is also behaving as an open system. This condenser is also behaving as an open system. तो अगर आप थर्मल पावर प्लांट देखेंगे, इन थर्मल पावर प्लांट यू आर हैविंग नंबर ऑफ ओपन सिस्टम्स. पंप हो गया, बॉयलर हो गया, सुपर हीटर हो गया, टर्बाइन हो गया, कंडेंसर हो गया. These all are the examples of the open systems, because continuously the mass will be flowing, mass will be crossing the boundary of the system. I hope each and everyone is clear till here. फटाफट से बोल देंगे बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोग? Yes. Now if I ask you one question, अब देखो ये तो सबको पता चल गया, ध्यान से सुनना बेटा, एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. This water circuit of thermal power plant is behaving as closed system or open system. देखो बाउंड्री बना रहा हूं. This is boundary. This water circuit of thermal power plant will be behaving as closed system or open. 100% it will be behaving as closed system only. I'm talking about water circuit. मैंने ये पूरा ले लिया बेटा, ये पूरा ले लिया. अगर मैंने ये पूरा ले लिया, we are having only the energy interactions. यहाँ work interaction हो रहा है, यहाँ पर heat interaction हो रहा है. Here I am having the work interaction, here I am having the heat interaction. Only the energy interaction is taking place. There is no mass interaction. That means the water circuit of the thermal power plant will be behaving as what? Closed system, because there is no mass interaction. Only the energy interactions in the form of heat and work is taking place. Yes! Very good. What a beautiful conclusion for my students. Pump, boiler, superheater, turbine, condenser are the examples of open system, whereas water circuit of the thermal power plant, neglecting water loss, is a closed system. I hope each and everyone is clear till here. And if you are clear till here, I am having one beautiful interview question for you people, my friends. Next is one interview question. देखो इधर. Oh my God. What is the difference between boiler and steam generator? Any intelligent student of the class can tell me. I'm waiting for your answer. Any intelligent student of the class can tell me what is the difference between boiler and steam generator. फटाफट से बताएंगे बेटा. जो लोग गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, देखते रहेंगे, बिकॉज आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस. मैं मैक्सिमम पोर्शन इस सिलेबस का कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स का कवर करने वाला हूं बाय गेट 2021. आपको चिंता नहीं करनी है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. व्हाटएवर द क्लासेस आई कैन टेक, आई विल टेक फॉर यू पीपल. बाकी जो 2022 के हैं, 23 के हैं, गेट 2022, 23, इंजीनियरिंग सर्विस 2022, इंजीनियरिंग सर्विस 2023, देखते रहो. जो लोग कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखते रहो बेटा. पूरे कॉलेज लेवल के कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं. यू नीड नॉट टू वरी. पीके नाक सॉल्व करने वाले हैं बेटा. विल बी सॉल्विंग द पीके नाक क्वेश्चंस आल्सो. सो यू नीड नॉट टू वरी. अब आपको कॉलेज में भी मार्क्स आएंगे, गेट में भी मार्क्स आएंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मार्क्स आएंगे. मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनामिक्स कोर्स की. वेरी गुड. नो छापा रमेश, नो बेटा. नो. आहा नहीं समझे. देखो अब मैं समझाऊंगा बेटा, नाउ लिसन केयरफुली. नो वन इज गिविंग द राइट आंसर. नाउ प्लीज लिसन केयरफुली. बेटा आपने टीएस डायग्राम देखा होगा ना. अगर आपने थोड़ा सा थर्मो पढ़ा है, टीएस ऐसा डोम देखा होगा आपने. ऐसा डोम देखा होगा बेटा. आप लोगों ने, है ना? अच्छा बेटा, व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? एनीवन इन द क्लास? बेटा इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व ना, याद आ रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड कर्व, जो भी आपका मन हो. इसको क्या बोलते थे बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? फटाफट से बोलेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? सैचुरेटेड वेपर कर्व. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. ये क्या होता था बेटा? दिस वाज किसिंग पॉइंट, मींस क्रिटिकल पॉइंट. एक बार लिख देता हूं, कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो. मैं लिख देता हूं बेटा, जिनको याद नहीं आ रहा एक बार मैं लिख देता हूं. वैसे तो ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आई विल टेल. दिस इज
saturated liquid curve. This is what? This is saturated vapor curve. And this is what? What is this top? Kissing point, critical point. अच्छा, किसी को याद है? Anyone is able to recollect? यहां क्या होता था बेटा? Subcooled liquid. Here I was having, yes, here I was having subcooled liquid. Here I was having superheated vapor. On this line I was having saturated liquid. स्टेट की बात कर रहा हूं. On this line we were having saturated vapor. अगर मैं एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाने की कोशिश करूं, if I try to represent a constant pressure line, कुछ ऐसा बना रहा हूं, देखना बेटा ध्यान से. हल्का सा कर. Now listen carefully beta. This is isobar where the pressure is constant. Now listen carefully beta. Boiler, सुनना ध्यान से. Remember, boiler cannot produce superheated vapor. अगर आपके पास कोई boiler है, generally at the outlet of boiler, देखो ध्यान से सुनो, what you need at the inlet of turbine बेटा, what you need at the inlet of turbine, ध्यान से सुनना बेटा, what you need at the inlet of turbine, you need superheated vapor. Remember, at the outlet of a boiler you will never get superheated vapor, you will be having the dry saturated vapor. At the outlet of boiler you will always have dry saturated vapor. Now to convert this dry saturated vapor into superheated vapor, you will be using this superheater. तो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से, इस डायग्राम पर ध्यान से देखना बेटा. At the outlet of boiler you will be here, आप यहां पे होंगे, you will be having the dry saturated vapor, but turbine needs superheated vapor. So what you do, you apply one superheater, you will be applying one superheater which will be converting this dry saturated vapor into superheated vapor. आपको टरबाइन के इनलेट पर यहां पर चाहिए, तो रिमेंबर बॉयलर नेवर प्रोड्यूसेस सुपरहीटेड वेपर, बॉयलर यहां पे लाके छोड़ देगा. ध्यान से देखना बेटा, क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा. बॉयलर आपको यहां पर लाकर छोड़ेगा. दिस विल बी एट द आउटलेट ऑफ बॉयलर. देखो ध्यान से सुनना बेटा. लेट अस सपोज यहां कहीं पर इनलेट ऑफ बॉयलर है, इनलेट ऑफ बॉयलर. दिस इज द स्टेट एट इनलेट ऑफ बॉयलर. नाउ व्हाट बॉयलर विल डू, बॉयलर विल ब्रिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. Outlet of boiler you will be having this. Now it is the function of superheater to take from here to here. So this is at the outlet of superheater. बात समझ में आ रही है? Now listen carefully. Boiler will be giving you, at the outlet of the boiler you will be having dry saturated vapor, and this superheated vapor will be converting that dry saturated vapor into superheated vapor. And this combination of boiler and superheater, is known as steam generator. ये जो combination होता है boiler का और सुपर हीटर का, इसी को ही बोला जाता है बेटा स्टीम जनरेटर. दिस इज नोन एज स्टीम जनरेटर. एनटीपीसी के इंटरव्यू में जाओगे, बार्क के इंटरव्यू में जाओगे, इसरो के इंटरव्यू में जाओगे, बीएचईएल के इंटरव्यू में जाओगे, ये सब पूछे जाते हैं बेटा. दिस इज योर स्टीम जनरेटर.
This is your steam generator. So no conclusion. What is the answer? Listen carefully. Boiler produces dry saturated vapor while steam generator produces superheated vapor. Steam generator consists of boiler and superheater. I hope each and everyone is clear what I am trying to tell you. उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही है बेटा. याद रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉयलर एंड स्टीम जनरेटर. बॉयलर कैन प्रोड्यूस ओनली एंड ओनली ड्राई सैचुरेटेड वेपर, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में देखोगे तो यू डोंट नीड जस्ट ड्राई सैचुरेटेड वेपर, यू नीड सुपर हीटेड वेपर. इसीलिए क्या होता है, पावर प्लांट में जैसे ही बॉयलर से ड्राई सैचुरेटेड वेपर बाहर निकलता है उसको डाल देते हैं सुपर हीटर में. दैट विल गो इनसाइड द सुपर हीटर सो दैट ड्राई सैचुरेटेड वेपर विल बी कन्वर्टिंग इनटू सुपर हीटेड वेपर. अब वो जाएगी टरबाइन में और झमाझम पावर प्रोड्यूस होगी. रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. यस 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 नेगी सोल्जर्स, आर यू क्लियर टिल हियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वेरी गुड वेरी गुड. ओहो ओहो हसी, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच. चलिए यहां से बोलिए बेटा, यहां से फिर आगे चले, यहां से आगे चलने वाले हैं. बोलिए बेटा, बोलिए. थैंक यू सो मच हसी. चलिए बेटा आगे चलेंगे. बोलिए यहां तक अगर आप लोग क्लियर हैं तो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. अरे तो हार्ट का सिंबल बना देंगे रे बाबा. इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हियर, मेक द हार्ट सिंबल, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द न्यू टॉपिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं रे बाबा. अरे मजा आ गया रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. यस यस, अरे मजा 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 मजा. यस 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 यस, एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ये हुई ना बात. आ रहा है नेगी सोल्जर्स आर ऑन फायर रे बाबा. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट. चलो बेटा, नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? व्हाट इज प्रॉपर्टी? बोलो रे बाबा. जब मैं बोल रहा हूं प्रॉपर्टी, व्हाट इज कमिंग इन योर माइंड? यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स. बोलिए बेटा, बोलिए बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी? फटाफट से बोलिए. What is property? I don't like those who are coming late. Please come on time रे बाबा, बिल्कुल टाइम पर आते जाएंगे. अरे चंपू क्लियर है रे बाबा. चलो वेरी गुड. What is property? What is property? फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में बेटा, फटाफट से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में. What is property? When I'm saying property, 90% of the students are going to give this definition. जब मैंने प्रॉपर्टी बोला, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी बोला, आप चैट बॉक्स में देख लेना. आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट बॉक्स. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी गिविंग दिस डेफिनेशन. सर प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम. और बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और जैसे आपने सिर्फ इतना बोल के रुक गए, इंटरव्यू समझ जाएगा कितने डिटेल में आपको पता है, पता चल जाएगा लेवल. He will come to know at what level you know the thermodynamics. Now Negi soldiers, listen carefully. You are not ordinary student now. You are having the tag of Negi soldiers. बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा. I'm telling you, जब एक बार आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो पूरा सीख कर जाएंगे बेटा. Property is the characteristic of the system to which a number can be assigned, to which a number can be assigned at any given instant of time. At any given instant of time. सर नहीं समझ में आया बेटा, मैं समझाता हूं. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. Let us suppose I am having a rigid container. Let us suppose I am having a rigid container. This rigid container is having some gas. This rigid container is having some gas. Now 100% this gas will be having some mass.
This gas will be having some volume. This gas will be having some temperature. This gas will be having some pressure. This gas will be having some thermal conductivity. This gas will be having some dynamic viscosity. Along with that, this gas will be having some color. This gas will be having some taste. This gas will be having some smell. But what is the difference? I have written two group of characteristics. अगर आप देखेंगे मैंने जो गैस की कैरेक्टरिस्टिक थी वो दो जगह पर लिखी है. अरे शैम्पू, one is this, one is this. Now I'm asking you one question. Of course, whatever I have written, all are the characteristics of the gas. Yes, ये भी characteristic है. These all are characteristics of the gas, and these are also the characteristics of the gas. There is no doubt. उसमें कोई doubt ही नहीं है. There is no doubt. Both are the characteristics of the gas. But what is the difference? What is the difference? Can I give some number to mass? अरे दे सकता हूँ ना. 5 kg, 10 kg, 20 kg. Can I give some number to volume? Yes. 2 meter cube, 1 meter cube, 0.5 meter cube. Can I give some number to temperature? Yes. 200 Kelvin, 300 Kelvin, 400 Kelvin. Can I give some number to pressure? Yes. 2 bar, 1 bar, 0.5 bar. Can I give some number of thermal conductivity? Yes, of course. 0.5 watt per meter square per Kelvin, 0.021 watt per meter per Kelvin, watt per meter per Kelvin. Viscosity? Yes. I can give 0.1 kg per meter per second. Can I give some number to color? नहीं दे सकता नंबर. Color is 2, color is 5, ऐसा बोलता है क्या कोई? Can I give some number to taste? अरे 7 taste है, अरे 8 taste है, अरे 20 taste है. No. स्मेल को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. बेटा ध्यान से रखना. I totally agree. These are the characteristics of the system. इसमें कोई डाउट नहीं है. But they are not the property. But they are not property. You cannot assign a number. They are not the property. You cannot assign the number to these characteristics. Whereas if you see here, whatever the characteristics I have written here, you can assign the number 100%. They are the properties. बात क्लियर हो रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? नेगी सोल्जर सबसे एक कदम आगे रहेंगे. लोग बोलेंगे, people will say, लोग बोलेंगे, लोगों को बोलने दो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम. तो आपको एक कदम आगे रहना बेटा. आपको एक कदम आगे रखना. यू शुड बी वन स्टेप फॉरवर्ड. यू शुड बी वन स्टेप अहेड ऑफ द ऑर्डिनरी नॉन नेगी सोल्जर्स. यस, यस. प्रॉपर्टी इज द characteristic of the system to which a number can be assigned at any given instant of time. Are you clear till here? बोलो रे बाबा. Are you clear till here? I want each and everyone to type in chat box. If you are clear till here, फटाफट से बोलेंगे बेटा. अगर आप यहां तक क्लियर हैं तो बोलिए, फिर मैं आगे चलूंगा बेटा. Now, what are the types of properties? Types of properties बताइए बेटा. Types of properties बताइए. I want you to tell me what are the various types of properties. फटाफट से बोलेंगे बेटा. What are the types of properties? What are the types of properties? फटाफट से बोलिए. Good evening उदय. Good evening. आ जाओ रे बाबा. Any intelligent student of the class can tell me what are the various types of properties. Hello beta. Yes. Negi soldiers are present. Excellent. बोलिए बेटा. What are the various types of properties? क्या पता है आपको? फटाफट से टाइप करेंगे. Yes, of course. You are clear. You are clear till here. There is no doubt. Characteristic of the system to which a numerical value can be assigned, to which a number can be assigned at any given instant of time, at a given time, is known as property. Type of property: extensive property and intensive property. Excellent है रे बाबा. Excellent है रे बाबा. You are absolutely correct. Extensive property and intensive property. Now, the next question is, what is extensive property? What is intensive property? फटाफट से बोलेंगे बेटा. टाइप कीजिए चैट बॉक्स में. What is extensive property? What is intensive property? फटाफट से बोलो. And I'm telling you, 90% of the students will be saying, sir, extensive property is a property which depends on the mass of the system. Intensive property is the property which is independent of the mass of the system. यही बोलने वाले हो ना.
यही बोलने वाले हो ना, क्योंकि अभी नेगी सोल्जर का टैग ही नहीं है ना। यस यस यस, नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली बेटा। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, तब उससे गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। डेंसिटी, डेंसिटी, व्हाट डू यू थिंक, डेंसिटी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? क्या लगता है आपको बेटा, डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? डेंसिटी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात? मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है। अब देखो जनता बढ़ जाएगी, जनता बढ़ जाएगी। अब जनता दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे इंटेंसिव है, बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव है, क्योंकि डेफिनेशन ही ऐसी है। अरे डेफिनेशन ही ऐसी है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। तो आपको लगेगा अरे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास पे तो डिपेंड कर रही है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना? यस, आई एम करेक्ट, आई एम करेक्ट। यस यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु आर सेइंग एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। आई डोंट केयर। अब यहां से जो मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन के जाना। नाउ लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग यू सम डेफिनेशन विच आई विल जस्टिफाई आल्सो। देखो मैं मास वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट। Extensive property is the property which depends on the extent in bracket size of the system. Extent का क्या मतलब होता है बेटा? साइज। अगर कोई प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंट पर डिपेंड कर रहे, आई विल से इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। What is intensive property? Intensive property is the property which is independent of the extent in bracket size of the system. कुल मिला के कहानी आकर अटक गई साइज पर। मैंने आपको वो जो मास वाला वर्ड था उसको किससे रिप्लेस कर दिया? एक्सटेंट से रिप्लेस कर दिया। इट गिव्स मोर क्लैरिटी, इट मेक्स मोर सेंस। आई एम नॉट सेइंग यू पीपल आर रॉन्ग। मैंने ये नहीं बोला कि आपने गलत डेफिनेशन दी, आपकी डेफिनेशन भी सही है। जो मैंने यहां पर लिखा है इन प्लेस ऑफ मास एक्सटेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट दिस एक्सटेंट वर्ड विल बी गिविंग यू मोर क्लैरिटी। अभी 5 मिनट में प्रूव हो जाएगा बेटा, अभी 5 मिनट में प्रूव हो जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। लेट अस सपोज आई एम हैविंग वन रिजिड कंटेनर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा। लेट अस सपोज आई एम हैविंग अ रिजिड कंटेनर एंड let me say in this rigid container I am having some gas. Let me say in this rigid container I am having some gas. Let me say this gas is having mass m, volume capital V, temperature capital T, pressure capital P मान लीजिए, and let me say thermal conductivity K, and let me say viscosity mu. Let us suppose I am having a container. मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ गैस भरी हुई है। इन दैट कंटेनर आई एम हैविंग सम गैस एंड दैट गैस इज हैविंग मास m. उस गैस में मास, जो गैस का मास है वो m है, वॉल्यूम इज कैपिटल V, टेम्परेचर इज कैपिटल T, प्रेशर इज कैपिटल P, द थर्मल कंडक्टिविटी इज K एंड द विस्कोसिटी इज mu. अब मुझे पता करना है, ऑफ कोर्स ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज, all these are the properties, yes, because these are the characteristics of the system to which I can assign a numerical value, to which I can assign a number, no problem. These all characteristics are the properties of the system, ये मुझे पता है। अब मेरा मेन एम है, my aim is to check which out of these which are intensive properties, which are extensive properties. अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन सी intensive properties हैं, कौन सी extensive properties हैं। अब देखो बेटा, whenever you want to check which properties are extensive properties, which properties are intensive property, आप क्या करो? Imaginarily, अरे चाकू से नहीं काटना है रे बाबा, प्रीतम प्यारे चंपू। सर कहाँ है? मैं अभी कट करता हूं। सर कहाँ है? मैं अभी कट करता हूं। अरे ऐसा नहीं बोला रे बाबा चंपू। Imaginarily, you divide the system into few parts. For example, हाँ, चंपू एकदम चाकू के साथ रेडी रहता है रे बाबा, अपना चंपू चाकू के साथ रेडी रहता है। देखो, imaginarily, let me say I have divided this container into two half. Let me say top half, bottom half, top half, bottom half. And let me say ये जो bottom half है, इसको भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया।
लेट मी से दिस पार्ट इज 3/4, दिस इज 1/4. तो ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना. व्हाट आई हैव डन इज, दिस इज टॉप हाफ, आई केप्ट एज इट इज. ये जो बॉटम था, बॉटम पार्ट को मैंने 3:1 रेशो में डिवाइड कर दिया. मतलब दिस इज 3 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट. फाइन. नाउ लिसन केयरफुली. अरे गैस तो हर जगह रहेगी ना. इमेजिनरली डिवाइड किया रे बाबा, चाकू से नहीं काटा रे बाबा. ये समझाओ कोई चंपू को रे बाबा. हाँ, चंपू इज एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड. नाउ लिसन केयरफुली बेटा. एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी what will be the mass of gas in this top half. बटा m/2 हो जाएगा ना. वॉल्यूम v/2, नो डाउट. अच्छा, टेम्परेचर क्या होगा बेटा? अरे इफ इन दिस कंटेनर whatever the gas I am having that was having temperature capital T, तो ये बताओ, ये जो टॉप हाफ है यहां पर गैस का टेम्परेचर कितना होगा? अरे ये तो कोई चंपो, ये तो कोई अंधा भी बता देगा रे बाबा. टेम्परेचर विल बी T ओनली, प्रेशर विल बी P ओनली, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैस विल बी K ओनली, डायनामिक विस्कोसिटी विल बी मी ओनली. एंड इफ समवन इज आस्किंग मी ओवर हेयर क्या होने वाला है, तो देखो बेटा, कैन आई से हेयर द मास विल बी 3m/8. कैलकुलेशन कर ली होगी सब लोगों ने, कैलकुलेशन कर ली होगी सब लोगों ने. दिस पार्ट विल बी 3/8, टोटल का 3/8 होगा ना. अरे देखो यार, ये कैसे इंजीनियर है रे बाबा, पूरे का ये भी नहीं कर पा रहे. ये टोटल कितना होगा? हाफ होगा ना रे बाबा, हाफ होगा ना पूरे कंटेनर का, टॉप हाफ. तो ये कितना होगा? हाफ का 3/4, तो ये 3/8 पोर्शन होगा ना रे बाबा. एंड दिस इज हाउ मच? 1/8 ऑफ टोटल कंटेनर. पता नहीं कैसे कैसे चंपू है रे बाबा मेरी क्लास में. सर ये कैसे आया? अब आ गया समझ में? हाँ, दिस विल बी 3/8. टेम्परेचर इज T, प्रेशर इज P, थर्मल कंडक्टिविटी K, म्यू. अब मैं यहां पर देखता हूं बेटा, ध्यान से देखना. यहां पे मास कितना होगा? m/8. व्हाट विल बी द वॉल्यूम? v/8. व्हाट विल बी द टेम्परेचर? T. व्हाट विल बी द प्रेशर? P. व्हाट विल बी द थर्मल कंडक्टिविटी K. व्हाट विल बी द डायनामिक विस्कोसिटी? म्यू. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज, द मोमेंट आई हैव चेंज द साइज ऑफ द सिस्टम, जैसे ही मैंने सिस्टम का साइज चेंज किया, देयर वैल्यूज आर आल्सो चेंजिंग. फॉर एग्जांपल, इफ यू सी हियर माय फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर देखेंगे, मास एंड वॉल्यूम आर ए कंटेनर. जैसे ही मैंने आधा किया इमेजिनरली, द मास इज आल्सो बिकमिंग हाफ, वॉल्यूम इज आल्सो बिकमिंग हाफ, बट रिमेनिंग थिंग्स, टेम्परेचर, प्रेशर, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट. देयर इज नो इफेक्ट ऑन दैट. 100%. क्या मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल लूं बेटा? क्या मुझे यहां से एक कंक्लूजन मिल रहा है? बेहतरीन कंक्लूजन. प्लीज ऑब्जर्व. क्या आप मेरे साथ समझ पा रहे हैं? मास एंड वॉल्यूम आर डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट. मास एंड वॉल्यूम आर डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन एक्सटेंट, डिपेंडिंग ऑन साइज. whereas other four, what are those other four? Temperature, comma pressure, comma thermal conductivity, comma dynamic viscosity, they are, can I say they are independent? Independent on extent. फटाफट से बोलेंगे रे बाबा. Can I say they are independent of the extent, they are independent of the size? Any intelligent student of the class can tell me mass and volume क्या हो गए बेटा? फटाफट से बोलो, mass and volume क्या हो गए? Mass and volume are what? Tell me quickly, mass and volume are what? फटाफट से बोलेंगे बेटा, mass और volume क्या हो गए यहां से? Intensive property और extensive property? Mass and volume are intensive property और extensive property. यहां से आपको क्या समझ में आया? Mass and volume are 100% extensive properties. They are depending on the extent. And whereas these are independent of the extent, so they are intensive properties. यहां तक सब लोग क्लियर है बेटा? धमाकेदार तरीके से मेरे साथ क्लियर है यहां तक? बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? यस यस, एक्सीलेंट है रे बाबा. यस यस, आई एम वेरी हैप्पी.
I'm very happy. Yes, excellent. Chirag, very good. Man Singh, very good. Deepak, very good. Visi, very good. अरे वाह वाह वाह. साई धीरज, very good. ब्रिजेश, very good. Excellent. महतो, very good है रे बाबा. ये हुई ना बात, ये हुई ना बात. मयूर, excellent है रे बाबा. बिल्कुल झमाझम तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा. हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल झमाझम तरीके से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चलो. यस, क्रिस्टल क्लियर. अरे एक नंबर है रे बाबा. चलो अब ध्यान से सुनना बेटा. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका टेस्ट लेना तो बनता है बेटा. अगर आपको समझ में आ गया तो बिना टेस्ट के कैसे समझ में आया वो मुझे डाउट है. तो एक टेस्ट ले लेता हूं. अभी अभी ले लेते हैं टेस्ट. अभी अभी ले लेते हैं टेस्ट. रेडी हो जाओ रे बाबा. और क्या, अभी स्टार्ट कर देता हूं दोस्त. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. हाँ, अभी के अभी हो जाएगा रे बाबा. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. चलो. हाँ और क्या सर, टेस्ट. हाँ बिल्कुल टेस्ट रे बाबा. अच्छा, आप लोगों को पता है ना, दिस सैटरडे यू विल बी हैविंग द प्रैक्टिस सेशन. मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा. इस सैटरडे आपको प्रैक्टिस सेशन है. मैं बेटा आपको प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं. सारे PYQs, गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सिविल सर्विसेज के, IFS के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाला. इनफैक्ट पीके नाग आल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो रेडी रहना बेटा. मैं काफी प्रैक्टिस सेशन रखने वाला हूं. आई एम टेलिंग यू दिस कोर्स विल बी मोर देन 150 आवर्स. 150 घंटे से ऊपर जाएगा बेटा, ध्यान रख लेना. और इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए, तो फिलहाल जो मेरे को समझ में आया, मास एंड वॉल्यूम आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एंड हेयर मेरे पास कुछ चीजें मिल गई थी. हाँ, टेम्परेचर, प्रेशर मिल गया था, थर्मल कंडक्टिविटी, डायनामिक विस्कोसिटी. चलो अभी के अभी टेस्ट स्टार्ट करते हैं. ये बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ बेटा. वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. वेलोसिटी का बताना बेटा. वेलोसिटी कुछ नहीं, बस ऐसा देख लो. देखो बेटा ध्यान से, बहुत इजी है आंसर करना, बहुत इजी है आंसर करना. ये गैस है, ये गैस है. लेट अस सपोज दिस कंटेनर इज मूविंग विद द वेलोसिटी c. मान लो ये जो कंटेनर है ये वेलोसिटी c से मूव कर रहा है. अब आपको ये देखना है, इमेजिनरली इफ यू आर डिवाइडिंग द कंटेनर इनटू 3 पार्ट्स, तो ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? इमेजिनरली ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ये वाला पार्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? ये तो बहुत इजी है रे बाबा. बोलो रे बाबा. एक्सीलेंट. इंटेंसिव, इंटेंसिव. देखो बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं. देखो मैं हूं सिस्टम, मैं हूं सिस्टम. मेरे 3 हिस्से कर लो. मैं हूं सिस्टम, मेरे 3 हिस्से कर लो. एक ही हो गया राइटिंग पेन, ये हो गया रिमोट, और ये देखो आप. देखो 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 ध्यान से देखो, ये है सिस्टम. ठुमक 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 ठुमक. सिस्टम इज मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये तो मीटर पर सेकंड कहां से बोलूंगा? मीटर पर सेकंड कहां से बोलूं? सिस्टम इज मूविंग ठुमक 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 10 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये वाला हिस्सा किससे मूव कर रहा है? अरे when the system is moving 10 centimeter per second, this is also moving at 10 centimeter per second. This is also moving at 10 centimeter per second. तो वेलोसिटी कैसी प्रॉपर्टी? साइज पे डिपेंड नहीं करी, छोटा है बड़ा है कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा. द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट and this part will remain same. I hope each and everyone is clear till here. चलो, वेलोसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. C लिख रहा हूं बेटा, C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फिलहाल यहां पर. इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ गया बेटा. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बताना. तो चलो आपको एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी बताना. बताओ बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? फटाफट से बताना बेटा. काइनेटिक एनर्जी इज इंटेंसिव. नहीं बेटा, अरे प्लस पे करवाओगे क्या प्रैक्टिस? पांडे साहब बोला तो फ्री में हो रहा है रे बाबा. आई विल बी टेकिंग द स्पेशल क्लास. प्लस पे नहीं होगा, प्लस पे तो अलग से चल ही रहा है रे बाबा. जल्दी से बोलिए बेटा. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी विल बी
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा। देखो वेलोसिटी इज सेम, मेरा मास ज्यादा है, इस पेन का मास कम है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी हैविंग लेसर काइनेटिक एनर्जी ना, सो इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज। काइनेटिक एनर्जी इज एन एक्सटेंट, इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी ले लो, पोटेंशियल एनर्जी ले लो, और एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू टेक बेटा, ऑल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अरे चंपू, कॉमन सेंस होना चाहिए ना रे बाबा। क्यों मैं बेवकूफ हूं क्या कि यहां पर लिखूंगा और फिर बोलूंगा अरे गलती से यहां लिख दिया था, ये तो इंटेंसिव। अरे चंपू, आई हैव रिटन इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैटेगरी, तो ये एक्सटेंसिव ही तो होगा रे बाबा। इतना तो कॉमन सेंस लगा लो रे बाबा, जो लोग इंटेंसिव लिख रहे हैं। सॉरी इंटेंसिव, अरे चंपू, आई हैव रिटन इन द कैटेगरी ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट हैज टू बी एक्सटेंसिव, तभी तो वहां लिखा होगा। नाउ माय फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, एनी एनर्जी will be extensive property only। अब ध्यान से देखना बेटा, कुछ और एग्जांपल देता हूं। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, these three are also extensive properties। वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, वक्त आने पे। द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, द मोमेंट आई विल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, आई विल बी टेलिंग यू। अब मुझे ये मत पूछना सर इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मैं बताऊंगा रे बाबा। जीरो पे हो अभी आप, जीरो पे, वहां पे मत चढ़ो। सर व्हाट इज एंथैल्पी, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड नॉट टू वरी। सर व्हाट इज एंट्रोपी, मैं बता रहा हूं एंट्रोपी 25 आवर्स आई एम गोइंग टू टीच, 25 आवर्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कितना डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। सो डोंट वरी बेटा, ईच एंड एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू। चलो फिलहाल आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बताओ बेटा, स्पेसिफिक हीट बताओ, स्पेसिफिक हीट बताओ, स्पेसिफिक हीट। अरे मजा 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 मजा, स्पेसिफिक हीट। आंसू बताओ बेटा, स्पेसिफिक हीट। Any intelligent student of the class can tell me specific heat। C से represent करेंगे specific heat। When I'm saying it can be specific heat at constant volume, CV, CP भी हो सकता है। बोलो बोलो बोलो, specific heat at constant volume और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा बेटा, 100। अरे चंपो, क्या होगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अरे कम से कम देख तो लो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कैटेगरी में डाल रहा हूं ना। चलो एक चीज और पूछता हूं बेटा, एक और चीज पूछता हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा, बताओ बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं धोखा भी दे सकता हूं मैं धोखा भी दे सकता हूं। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर बार बार यही जहां जहां है वहीं लिख रहे हैं। मैं धोखा देने में बहुत उस्ताद हूं बेटा, मैं धोखा भी दे सकता हूं इस ऐसे मामले में जहां पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट करने हो, मैं धोखा भी दे सकता हूं बेटा चलो ये बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज धोखा हो गया तो फिर मुझे गाली मत देना बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ। इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज में बढ़ जाएगी दुनिया, इलेक्ट्रिक चार्ज में बढ़ जाएगी दुनिया इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ चलो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे अपन लोग फिजिक्स में। फिजिक्स में जाओ, फिजिक्स वाले सर को याद करो, फिजिक्स वाले सर को याद करो। क्यों चल रहा नहीं, फिजिक्स वाले सर को याद करो, क्यों चल रहा नहीं। हाँ ऐसे होता था ना, व्हाट इज दिस एन, ये एन क्या होता है बेटा, व्हाट इज दिस एन, एन कुछ तो बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कुछ लोग तो नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं अरे यार कुछ तो सोचो रे बाबा, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो इज्जत रखो फिजिक्स वाले सर की हाँ
नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं कुछ लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज दिस ई बेटा? ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ना. हाँ, ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ना. आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. बेटा डोंट यू थिंक, जरा ध्यान से सोचना, दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाना बेटा. क्या आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा? इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, इस हिस्से में उससे कम होंगे, इस हिस्से में सबसे कम होंगे ना. अरे ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ. अरे इमेजिनेबली इफ यू डिवाइड देन यू कैन ऑब्जर्व बेटा, इस हिस्से में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहां उससे कम होंगे, यहां सबसे कम होंगे. ऑफ कोर्स number of electrons will be depending on the size of the system. Then 100% electric charge will be depending on the size of the system. Electric charge आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया बेटा, it is an extensive property. कोई डाउट नहीं है. You are absolutely correct. Yes, you are absolutely correct बेटा. अब ध्यान से सुन लेना. Now listen carefully. Now listen carefully. आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं. मैग्नेटाइजेशन, फटाफट से टाइप करो बेटा. मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बेटा मैग्नेटाइजेशन अगर आपको इंटरमीडिएट में याद आ रहा होगा तो मैग्नेटाइजेशन किस पर डिपेंड करता था? इट वॉज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डाइपोल्स. इट वॉज डिपेंडिंग ऑन, याद आ रहा है ना, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ डाइपोल्स. So of course, as the size of the system changes, number of dipoles will change. As the number of dipoles will change, 100% magnetization will change. अगर कोई यहां पर अभी बेटा केमिकल का स्टूडेंट है तो केमिकल में एक टर्म आता है बेटा, केमिकल पोटेंशियल. केमिकल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, चलो अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं बेटा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. चलो फिर से बात आती है अब डेंसिटी पर. बताओ बेटा डेंसिटी, अब जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से आप बताओ. डेंसिटी जो मैंने डेफिनेशन बताई उसके हिसाब से आप बताओ. डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब बात करते हैं डेंसिटी की बेटा. फटाफट से बताओ. के आई, वेरी गुड बेटा. डेंसिटी बताओ. डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. फटाफट से बताइए बेटा. टाइप करेंगे चैट बॉक्स में. टाइप करते जाओ रे बाबा, टाइप करते जाओ रे बाबा, बोलते जाओ. डेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. बोलते जाएंगे बेटा. डेंसिटी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंटेनर, whole rigid container. In that whole rigid container, the mass of the gas was m, the volume was capital V. तो अगर मैं होल कंटेनर की बात करूं तो वहां पर डेंसिटी क्या होगा बेटा? देखो मान लो होल कंटेनर तो था, ये फर्स्ट पार्ट था. लेट अस सपोज दिस इज सेकंड पार्ट एंड लेट अस सपोज दिस इज थर्ड पार्ट. तो आपको याद आ रहा होगा होल कंटेनर में तो जो मास था वो स्मॉल m था, वॉल्यूम कैपिटल V था. हियर the mass is m by 2, volume is v by 2. If I am not wrong, here mass was 3m by 8, volume is 3v by 8, and this third part mass was m by 8, volume was v by 8. अब निकालो बेटा. अगर मैं होल कंटेनर की बात करूं तो डेंसिटी क्या होगा बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. m by v आ गया बेटा, कोई डाउट ही नहीं है. यहां देखो जरा एक बार. व्हाट विल बी द डेंसिटी इन दिस फर्स्ट पार्ट? हाउ मच इज द मास? m by 2. हाउ मच इज द वॉल्यूम? v by 2. सो हाउ मच इज द डेंसिटी इन दिस फर्स्ट पार्ट? m by v. You see the density of the gas in this second part beta. How to find the density of the gas in this second part? Mass is how much? 3m by 8. अरे लाइक करते जाओ रे बाबा. 3v by 8 कितना आ गया? m by b.
सिमिलरली अगर आप यहां पे भी देखेंगे, डेंसिटी ऑफ दिस स्मॉलेस्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, m/8 divided by b/8. So what is the density I am getting? Can I say I am getting m/b only? So are you able to understand बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? चाहे आप पूरा कंटेनर लो, m/b है, whether you take this top part, m/b, whether you take this second part, m/b, whether you take this smaller part, m/b. अरे हर जगह तो m/b ही है रे बाबा, everywhere I am getting m/b. What is the meaning of that? What is the meaning of that? 100% density is an intensive property. 100% density is an intensive property. There is no doubt. There is no doubt. Density rho is an intensive property. Now any intelligent student class, आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम का नाम सुना है? What is specific volume? फटाफट से बोलिए बेटा. You heard about specific volume? Anyone in the class बेटा? Let me represent by small v. What is specific volume? फटाफट से बोलेंगे बेटा. आपने specific volume के बारे में पढ़ा है तो बताओ specific volume क्या होता है बेटा? Volume divided by what बेटा? Mass. Now any intelligent student of the class can tell me specific volume is an intensive property or extensive property. फटाफट से बता देंगे बेटा जो specific volume है वो intensive property है या extensive property है. बोलिए बेटा specific volume is an intensive property or extensive property. I want each and everyone to answer in chat box. Excellent, excellent, very good बेटा, very 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 happy. अब देखना बेटा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना. देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. देखो अभी हमने क्या देखा? जस्ट नाउ वी हैव सीन मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट जस्ट नाउ वी हैव सीन डेंसिटी इज व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. सो कैन आई गिव यू वन ब्यूटिफुल कंक्लूजन? The ratio of two extensive properties is always intensive property. अरे देखो ना रे बाबा, देखो mass is extensive, volume is extensive, so extensive, the ratio of two extensive properties, what I am getting intensive property. अब बताओ, अब तो आप बता दोगे बड़ी easily. देखो ध्यान से बेटा, this is extensive property, 100% this is intensive property, sorry extensive property. So what can you say about specific? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. आई होप ईच एंड एवरी. सिमिलरली नाउ लिसन केयरफुली, आई एम गिविंग यू फ्यू थिंग्स. सिमिलरली देखना बेटा ध्यान से, देखना बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ कमिंग. सिमिलरली स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, similarly specific internal energy small u, which is equal to what? Internal energy, which is equal to what? Internal energy. यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला बेटा, internal energy. How are we going to represent internal energy? By capital U divided by mass. Any intelligent student of the class बोलो बेटा specific internal energy will be extensive property or intensive property? फटाफट से बोलेंगे बेटा specific internal energy will be extensive property or intensive property. फटाफट से बोलेंगे बेटा, फटाफट से बोलेंगे. Just now I have told you internal energy is what? Extensive property. Extensive property divided by extensive property is 100% intensive property. कोई डाउट ही नहीं है. Similarly specific enthalpy. Similarly, specific enthalpy
small h, it is equal to what? Enthalpy capital H divided by mass m. This is also इंटेंसिव प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक एंथैल्पी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. स्पेसिफिक एंट्रोपी स्मॉल s, it can be written as what? Entropy in bracket capital S. देखना बेटा, एंट्रोपी को कैपिटल S लिखा है, डिवाइडेड बाय मास m. This is also intensive property. Similarly, specific pressure. क्या होने वाला है बेटा? स्पेसिफिक प्रेशर स्मॉल p will be equal to what? Pressure in bracket capital P divided by mass. फटाफट से बोलेंगे बेटा, स्पेसिफिक प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. टाइपिंग चैट बॉक्स रे बाबा, स्पेसिफिक प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? स्पेसिफिक प्रेशर का बताइए, फटाफट से बोलना बेटा. स्पेसिफिक प्रेशर, दिस इज योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट. दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट. दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट. दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नो डाउट. यस और नो, यस और नो. टाइपिंग चैट बॉक्स रे बाबा. पूरी थर्मो होगी बेटा, पूरी थर्मो होगी. आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लिखा है थंबनेल पे फुल कोर्स. फुल कोर्स का मतलब समझ जाओ. और नेगी सर ने एक बार जो बोल दिया वो कंप्लीट होती है, उस चीज को भी याद रखना. अरे जो लोग आंसर दे रहे हैं, दोज हु आर गिविंग द आंसर, पहले ये तो देख लो स्पेसिफिक प्रेशर आपने कौन सी बुक में पढ़ा है? इन विच बुक यू स्टडीड स्पेसिफिक प्रेशर? इन विच बुक यू स्टडीड स्पेसिफिक प्रेशर? मुझे ये बताओ, कौन सी बुक में आपने स्पेसिफिक प्रेशर पढ़ा है? बेटा बेसिक थर्मोडायनामिक्स बोला है, पहले बेसिक पढ़ो. मैं तो पहले बेसिक पढ़ लो बेटा. फ्लूइड तो खत्म हो गया बेटा. लिसन केयरफुली, ये गलती मत करना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड स्पेसिफिक प्रेशर. इसका मतलब क्या हो गया? क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बिकॉज प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो क्या मैं यहां से बोल दूं, कैन आई से वन ब्यूटिफुल थिंग बेटा? इन थर्मोडायनामिक्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इन थर्मोडायनामिक्स for the specific properties are defined only for extensive properties. Can I say in thermodynamics specific properties are defined only for extensive properties? Are you clear till here? बोलो रे बाबा, यहां तक आप लोग क्लियर हैं? Now listen the beautiful conclusions बेटा. कंक्लूजन नंबर 1, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. जिंदगी भर याद रखना कि ये क्वेश्चन नेगी सर ने पूछा था और हमने गलत आंसर बताया था. डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये तो आपको पता ही है. The ratio of two extensive properties will be an intensive property. Specific properties are defined as extensive properties per unit mass. जो specific properties होती हैं उनको हम कैसे define करते हैं बेटा? Extensive property per unit mass. Specific properties such as specific volume, specific internal energy, specific enthalpy, specific entropy are intensive properties. Are you clear till here? यहां तक क्लियर है आप लोग? जल्दी बोलिए बेटा. आर यू क्लियर टिल हियर? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे चलेंगे. सुपर क्लियर. अब बेटा आई नीड टू डिस्कस वन मोर पॉइंट. एक और पॉइंट डिस्कस करना है. उससे पहले काफी लोग हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पूछा, तो उनको थोड़ा आइडिया दे दी जाए. बेटा ये है ज्ञान गंगा. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग मी सर आपकी फ्री क्लासेस चाहिए.
sir, we need your all free classes in a systematic way. Beta, whatever the free class I have taken on YouTube, whatever the free class I have taken on an academy platform, I have arranged in a proper systematic way. आपको कुछ नहीं करना, ये जो ज्ञान गंगा है ना बेटा, tinyurl.com/negi10 code, नेगी 10 कोड में कोई स्पेस नहीं है, नेगी 10 कोड, अरे ये नेगी 10 नेगी सोल्जर्स का कोड है रे बाबा, नेगी 10 कोड. Applications of thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, previous gate questions, special session thermodynamics, something like this will open. And the moment, let us suppose you want to see the free classes of fluid mechanics, इसको एक बार click कर लेना. The moment you will click on fluid mechanics, something like this will open. What is the meaning of this? First column is telling you the name of the chapter. Second column is telling you whatever the chapters are there. Third column, whatever the lectures are there. Third column is telling you whatever the topics are covered in that particular lecture. Fourth column is telling you whatever the video you want to watch. यहाँ पर click कर देना. जिस भी lecture का video देखना हो यहाँ पे click कर देना. And this fifth column will be giving you the notes, class notes. Are you getting what I'm saying? And this is the special class which you people are having today. ये special class है जो आज है आप लोगों के लिए. Those who are preparing for GATE 2021, जो लोग GATE 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, they must attend today's class. उनको आज की क्लास अटेंड करना है. If they are installing the Unacademy Learning app first time, they should put the invite code as Negi10. It is mandatory for all Negi soldiers. So today at 10:15 PM we'll be discussing practice questions of second law of thermodynamics. Okay. Now I want to discuss one more thing, beta. I want to discuss one more thing. Shall we move forward? बोलो रे बाबा, आगे बढ़ा जाए. Shall we move forward? बोलो 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 रे बाबा, बोलो रे बाबा. Shall we move forward? Yes, 100% we should move forward. अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताना आपको. देखना बेटा, आपको याद आ रहा है? The total mass was m. I'm recollecting that particular rigid container where I was having some gas. Total mass was m. The mass of first part was m by 2. The mass of second part was 3m by 8. The mass of third part, that is small part, was m by 8. बेटा क्या मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन बैलेंस है, m by 2 plus 3m by 8 plus m by 8 will be m only. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, m is equal to m of first part, m of second part plus m of third part. Now look at here beta, if I try to write the same thing for temperature, तो देखो टेम्परेचर के लिए तो ये आएगा ना बेटा, टेम्परेचर ऑफ टोटल कंटेनर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ थर्ड पार्ट. दैट मीन्स टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ थर्ड पार्ट. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. बेटा मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी. फटाफट से बताना, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो इफ यू वांट द टोटल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, व्हाट यू नीड टू डू इज, whatever the parts of the system we are having, you add all those parts extensive property and you will be getting the extensive property of total system. अगर मुझे पूरे सिस्टम का मास निकालना है तो वो सिस्टम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड है, so I will be adding the mass of all the parts and I will be getting the total mass. That means extensive properties are additive in nature. What I'm saying, listen carefully. Extensive properties are एडिटिव इन नेचर. उनको आप ऐड करके टोटल सिस्टम का प्रॉपर्टी निकाल सकते हो. बट इफ यू ऑब्जर्व हियर, टेम्परेचर इज व्हाट बेटा? टेम्परेचर इज व्हाट? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? 100% टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इफ टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट गेटिंग एडेड. इट इज नॉट गेटिंग एडेड. इट इज नॉट एडिटिव. तो एक कंक्लूजन सुन लेना बेटा. Please observe one conclusion. In case of extensive properties, its values for the overall system. In case of extensive properties,
its value for the overall system is the sum of its values for the parts in which system is divided. Is the sum of the parts in which the system is divided. That is, extensive properties are additive in nature. Intensive properties are not additive in nature. Are you clear till here? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अरे कुल मिला के अगर आपको पूरे कंटेनर का मास निकालना है, लेट सपोज इमेजिनरली आई डिवाइडेड द कंटेनर इनटू 3 पार्ट्स. आप पहले कंटेनर का पहले पार्ट का जो मास है, दूसरे पार्ट का जो मास है, तीसरे पार्ट का जो मास है, उन सबको ऐड कर दीजिए. यू विल बी गेटिंग द मास ऑफ होल कंटेनर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. किसी को डाउट तो नहीं है? और अगर समझ में आ गया तो यार एक बार टाइप कर दो मजा 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 मजा. यस, अरे झमाझम कॉन्सेप्ट है रे बाबा. यस, ब्यूटीफुल. एंड दोज हु आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स, मैं बोल रहा हूं बेटा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. और शेयर करो रे बाबा. शेयरिंग इज केयरिंग. जितना आप शेयर करेंगे उतने ये वीडियोस आगे जाएंगे. जितने ये वीडियोस आगे जाएंगे उतने आपके नेगी सर आगे जाएंगे. जितने आपके नेगी सर आगे जाएंगे उतनी एनर्जी से आपको पढ़ाएंगे. आर यू गेटिंग? बेटा मेरा एक ड्रीम है, दीज वीडियोस शुड रीच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज लुकिंग फॉर थर्मोडायनामिक्स क्लासेस. जिनको भी थर्मोडायनामिक्स की क्लासेस की जरूरत है वहां तक पहुंचना है. कौन पहुंचाएंगे? आप लोग पहुंचाएंगे बेटा. यू आर गोइंग टू मेक श्योर इट इज रीचिंग टू ईच एंड एवरी नीडी वन. तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, इफ यू आर लाइकिंग द क्लास, मैं जबरदस्ती नहीं है बेटा. अगर आपको लग रहा है कि सर पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं, सर पूरी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं और हमको मजा आ रहा है, इफ यू आर एंजॉइंग द क्लास, बेटा इसको शेयर कर देंगे, कमेंट करके जाएंगे. बेटा आप लोग की सबसे बड़ी गंदी आदत है, आप लोग देख कर जाते हो पर कमेंट नहीं करते. मुझे पता तो चले मेरे नेगी सोल्जर्स हैं कौन कौन. अरे मुझे पता तो चलना चाहिए कौन कौन मेरे नेगी सोल्जर्स हैं. सो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो एज अ रिकॉर्डेड और हु इज वाचिंग लाइव, बेटा कमेंट करो. आकर कमेंट करो. जो नीचे में कमेंट बॉक्स आता है उसको भर दो. 150-200 कमेंट कर डालो रे बाबा. इफ यू सी द अर्लियर वीडियोस आर हैविंग 2000-3000 व्यूज और कमेंट है केवल 10. क्यों भाई? आपको क्लास पसंद नहीं आ रही? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बेटा आज के आज कमेंट लिखेंगे अपना, ताकि मेरी एनर्जी और डबल हो जाए नेक्स्ट क्लास में. क्या है नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास है बेटा स्टेट प्रोसेस एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. कल इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट, व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. ठीक है? थैंक यू सो मच बेटा अंशु. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच बेटा. थैंक यू सो मच. Now tomorrow I will be taking the class on Mechanical Army YouTube channel also. अगर जो लोग 2021 की तैयारी कर रहे हैं बेटा, tomorrow I am going to discuss polytropic process. कल मैं polytropic process डिस्कस करने वाला हूं. भूलना मत इस क्लास को अटेंड करना, बहुत ही मजा आने वाला है. ठीक है? And these are the free initiatives by me on Unacademy platform. I started most expected question series for fluid mechanics, XCB, XCE की PYQ सीरीज स्टार्ट है बेटा. जो लोग XC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग सिविल के लिए कर रहे हैं बेटा, सिविल बहुत ही बेहतरीन एमएसक्यू सॉल्व हो रहे हैं बेटा. मैं बता रहा हूं, एक बार आप जाके देखो मेरी क्लासेस. जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे देखेंगे हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है. बच्चों का इतना प्यार रहता है. कभी कभी तो टॉप 2 ट्रेंडिंग मेरी क्लास होती है. समटाइम्स आई हैव सीन टॉप 2 ट्रेंडिंग विल बी माई क्लासेस ओनली. तो बेटा आपको मिस नहीं करना. जब बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं तो आप पीछे क्यों हो? आप भी आगे आइए और जमकर प्यार बरसाइए. थैंक यू सो मच बेटा. आज आ जाएंगे सब लोग 9th of December, that is Wednesday. Today we are going to meet at 10:15 PM. सर कैसे आना है? लिंक नहीं मिलता बेटा. नेगी 10 टेलीग्राम चैनल एक ऐसा चैनल है where you will be finding each and every link of mine. आपको कोई जरूरत ही नहीं है इधर उधर भागने की. अदरवाइज ये जो QR कोड है इसको स्कैन मार लेना. नाउ जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, दोज हु हैवंट इंस्टॉल्ड अनअकैडमी लर्निंग ऐप टिल नाउ, जिन्होंने भी भाई बंधुओं ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, कर लो बेटा. यू विल बी गेटिंग 12 बेनिफिट्स. द फर्स्ट थिंग इज यू विल बी एबल टू अनलॉक द फ्री प्लान्स. आपके जितने भी फ्री प्लान्स हैं सब अनलॉक हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू वॉच Unacademy free special classes. You will be able to have the quizzes. You will be able to have the free test series also. दूसरी बेनिफिट, दूसरा बड़ा तगड़ा बेनिफिट जो होने वाला है बेटा, you will be able to personally message me. और बेटा अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे मैसेज करते जाओ
कमेंट्स करते जाओ, मुझे बताते जाओ जो भी आपको फील हो रहा है। तो मैसेज कर सकते हैं आप मुझे डायरेक्टली अगर आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेरी है, सर बुक्स चाहिए, हमको नोट्स कैसे बनाने, शॉर्ट नोट चाहिए, बेटा आई विल बी हेल्पिंग यू नीड नॉट टू वरी। ओके, इवन आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करता हूं। मैं आपको जितनी भी हेल्प हो सकती है ज्वाइन करने में मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान ही नहीं होना है। इनफैक्ट इफ यू आर ज्वाइनिंग बाय यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10, ऐसा नहीं है कि सर को पता चलेगा नहीं पड़ेगा, बेटा वी आर गेटिंग द प्रॉपर मैसेज दैट यू हैव ज्वाइंड एंड आई एम टेलिंग यू एट द सेम टाइम यू कैन ड्रॉप मी द मैसेज आल्सो, सर वी हैव ज्वाइंड यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10। अब बस आप ही हमको गाइड कीजिए। बेटा मैं बोल रहा हूं, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, आई विल बी गाइडिंग लाइक एनीथिंग। आपको प्रॉपर मेंटरशिप, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाली है कि गेट का एग्जाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम कैसे क्रैक करना है। यू नीड नॉट टू वरी बेटा। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू सो मच बेटा। दिस इज अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर गेट। बेटा इसको कोई नेगी सोल्जर मिस नहीं करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, बिना घबराए इस अनअकैडमी कॉम्बैट फॉर गेट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर पार्टिसिपेट करो, 1 घंटे का होगा इवेंट, 1 घंटे में 15 क्वेश्चंस होंगे। आप बढ़िया से पार्टिसिपेट कीजिए, नेगी सोल्जर्स झमाझम प्राइजेस विन कीजिए, है ना। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑन द टॉप रहेंगे तो आपको मिलने वाला, यू विल बी गेटिंग एप्पल मैकबुक एयर मिलने वाली है। इफ यू आर ऑन द सेकंड यू विल बी गेटिंग एप्पल आईपैड मिनी, इफ यू आर ऑन थर्ड यू विल बी गेटिंग एप्पल एयरपोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स अगर आपके और कुछ रैंक आती है तो आपका अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स तो मिलने वाले ही हैं। तो एकदम बिंदास होके पार्टिसिपेट कीजिए। मैंने ऑलरेडी लिंक पहले आपको बता दिया था, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग इन नेगी10 टेलीग्राम चैनल आल्सो, यू नीड नॉट टू वरी। लेकिन पार्टिसिपेट करो यार, पार्टिसिपेट करने की आदत डालो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो अगर अभी तक नहीं किया है, यूज द इनवाइट कोड नेगी10। याद रखना ये नेगी10 जो है ये आपको सफलता की कुंजी है, दैट इज द सक्सेस की ऑफ द सक्सेस। तो आपको ये नहीं छोड़ना है, नेगी10 नेगी10 नेगी10, इसको याद रख लो। नेगी इज माई नेम एंड 10 आप समझ गए, है ना। ठीक है, चलो ये बेटा ये है लिंक। जो लोग लिंक के लिए सोच रहे होंगे, बेटा ये है लिंक, इसको अपने एड्रेस बार में डालना, जहां पे google.com लिखा था वहां पे डाल दीजिए। आप लिंक पर, आप पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां से आप एनरोल कर लेना। बेटा दिस इज द कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, सब लोग पूछते रहते हैं सर मुझे आपका 2022 का बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा। बेटा गेट 2022 का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, रनिंग है, एंड वी आर गोइंग टू ऐड न्यू कोर्सेज आल्सो इन दिस पर्टिकुलर बैच। इसमें नए कोर्सेज भी ऐड होने वाले हैं, और याद रखना जो कोर्सेज ऑलरेडी हो चुके हैं वो बाद में रिपीट भी होने वाले हैं। तो आप कुछ मिस नहीं करोगे। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे यू विल बी इन एडवांटेज, एंड आई एम टेलिंग यू इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। ये सब कंपटीशन है। कुछ लोग वेट कर रहे हैं सर जनवरी में ज्वाइन करेंगे, फेब में ज्वाइन करेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है। दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर गेट 2022 आ जाओ नेगी10 लगाकर ऑन अनअकैडमी प्लस। आई विल बी गाइडिंग यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिकॉज यहां पर पूरा सिलेबस होने वाला है बेटा। डोंट वरी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे कुछ कोर्सेज पहले छूट गए, दे विल ऑल गेट रिपीटेड। नो वरी रे बाबा। नाउ दिस इज माय थर्मोडायनामिक कोर्स which is going on अनअकैडमी प्लस, and beta this is the thing. The moment you are coming on Unacademy Plus using the referral code NEGI10, let us see what are the things you will be getting. Beta, you will be getting the live classes. In case you are missing the live classes, you will be able to watch the recordings. आपको recordings मिलने वाली है. You will be getting the daily practice problem. You will be getting the practice sheets. You will be getting the weekly quizzes. आपको video solutions मिलने वाले हैं weekly quizzes के. And other than that, you will be having the crash course. You will be having the rank improvement batch. And most importantly, you will be getting my personal guidance. आपको मेरी personal guidance मिलने वाली है. And I'm telling you, you need not to worry about the language of the course, because you will be having the English course as well as Hindi course also. Now let us suppose अगर आप financially well settled हैं, if you are financially well settled and you can invest little more on your future, तब मैं आपको एक जबरदस्त चीज के बारे में बताता हूं बेटा. I will recommend you, instead of joining Unacademy Plus, you can join Unacademy Iconic. अगर आप financially settled हैं, आपको कोई problem नहीं है, and you can invest little more, then you join Unacademy Iconic, because Unacademy Iconic is going to give you PC, personal coach. Now what is the function, what is the role of this personal coach? This personal coach is going to guide you in each and every stage of your competitive exam preparation, right from the beginning. Starting से study की planning कैसे की जाए, study का planner आपको बताने वाला है. And listen carefully, notes कैसे बनाने हैं, short notes कैसे बनाने हैं, revision कैसे करना है. Are you getting? Which books we should follow? What are the standard books which we should follow? And I'm telling you, in competitive exam, you should know what not to do. So basically, this PC, this personal coach, is going to tell you what not to do in order to
वेस्ट योर टाइम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, जो ये पीसी आपको बताने वाला है। एट द सेम टाइम दिस पीसी विल बी डूइंग, दिस पर्सनल कोच विल बी डूइंग द पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस फॉर यू। देखो स्टडी प्लानर तो होने ही वाला है आपके लिए, एक बढ़िया सा स्टडी प्लान मिलने वाला है आपको, and you will be getting the personalized test analysis also. Yes, this PC will be analyzing your performance in quizzes. जो भी आप क्विज में आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, whatever the negative points you are having, he will be or she will be highlighting for you. आप अपनी कमजोरियों पर काम करने वाले हैं, so that you can get the success and at the end you are ready for the D-Day. Now, other than that, you will be getting the study booster sessions also. ये study booster sessions भी आपको मिलने वाले हैं बेटा। हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे जल्दी समझ में नहीं आता, सर मैं धीरे धीरे रीड कर पाता हूं। बेटा यू विल बी गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। क्या आर्ट है एग्जाम लिखने की, ये सब चीजें आपको यहाँ स्टडी बूस्टर सेशन में मिलने वाला है। इसके साथ साथ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग फॉर द मटेरियल। आपको अब चिंता ही नहीं करनी है। द मोमेंट यू आर ज्वाइनिंग फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक, यू विल बी गेटिंग द प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल भी आपको मिलने वाला है बेटा, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। Okay, you will be getting the theory part, you will be getting the numerical part also, so need not to worry. Now if you are planning to join an academy plus using your own referral code, yes, those who are Negi Soldier, they are having their own referral code. जो भी Negi Soldier है उनका अपना referral code है Negi 10 Negi 10 Negi 10. The moment you are applying your referral code, your subscription fee will be reduced. Yes, if you are planning to join for 12 months, it will be reduced to 27,225 rupees. If you are planning to join for 18 months, it will be reduced to 34,650 rupees, and for 24 months, it will be reduced to 39,600 rupees. Now this is the fee structure of Iconic. Now the question is why to use Negi 10. I'm telling you beta, because Negi 10 is not just the code, it's an emotion which is connecting me to you people. Negi sir to Negi Soldier, झमाझम classes to झमाझम learning. Are you getting to? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. Yes, yes, yes. You should be proud of using referral code Negi 10, because the moment you are using the referral code Negi 10, you are using the referral code of the top educator on an Academy Plus. You are using the referral code of the head mechanical head and academy brands. You are using the referral code of All India Rank 1 GATE 2019-20 English paper. You are using the referral code of All India Rank 1 Banknote Paper Mill. You are using the referral code of the topper MTech IIT Bombay. You are using the referral code of the experienced educator who is teaching for GATE and EC since 8+ years. You are using the referral code of the experienced mentor who has mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. So remember my friends, ME plus XC matlab Negi 10, Negi 10, Negi 10. इट इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बेटा, आपको ये एक्सी मिस नहीं करना है। अगर आपके मैकेनिकल में कुछ इधर उधर होता है, दिस एक्सी विल बी गिविंग यू द सीट इन आईआईटीज। आईआईटीज में आपको सीट मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है बेटा पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट से रिजॉल्व करने वाला हूं। अदरवाइज आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, Negi 10 इनवाइट कोड यूज कीजिए एंड सेंड मी द मैसेज ओवर देयर। वहां से आपको मेरी सारी लिंक्स डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, ठीक है सर, काइंडली शेयर द लिंक ऑफ एक्सेल शीट। बेटा बताया तो tinyurl.com किसी के पास है तो बेटा डाल दो Negi 10 कोड। किसी के पास है तो ये लिंक दे दो बेटा। तो आज मिलने वाले हैं हम लोग 10:15 पर। विल बी सॉल्विंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्वेश्चंस। नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर बेटा, नेक्स्ट ईयर मेरे से कंडक्शन भी पढ़ना है। हाउ वाज योर लर्निंग फ्रॉम कन्वेक्शन रेडिएशन? कन्वेक्शन और रेडिएशन कैसा रहा था बेटा? साहित्य तो मुझे लग रहा है बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। आई थिंक ही नोज दैट आई हैव टेकन रेडिएशन एंड कन्वेक्शन अर्लियर। गुड बेटा, टॉम ऑलरेडी हो चुका है इस यूट्यूब चैनल पर। टॉम ऑलरेडी हो गया बेटा, एक बार देख लेना प्लेलिस्ट, टॉम आपको मिल जाएगा। ये देखो ये आ तो रहा है। अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। चलो बेटा, मेरी प्लस की क्लास का टाइम हो रहा है, प्लस वाले बच्चे गाली देंगे, है ना? चलो देन, लव यू ऑल, टेक केयर, प्रोपेगेट करो रे बाबा। चलो बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।